सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको, दैट इज MCO5। MCO5 इग्नो का जो है, इग्नो का MCO5 एमकॉम इग्नो जो एमकॉम जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए एक पेपर है MCO5, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसका ये पार्ट है। जो पहला जो यूनिट वन जो है, दैट इज अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तीन तरह के जो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल, देन कॉस्ट एंड देन मैनेजमेंट। एम FCM जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रोल ऑफ मैनेजर, नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो नीड ऑफ अकाउंटिंग, देखिए हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेंटेन देयर रिकॉर्ड। क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, बिजनेस को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल वन बिजनेस इज नॉट रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजेक्शन, हाउ दे नो दैट हाउ मच प्रॉफिट और हाउ मच लॉस दे हैव इनकर्ड। सो फॉर दैट दे हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसको बोला जाता है। सो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, सो नीड ऑफ अकाउंटिंग क्यों हम लोग करते हैं। सो इट इज क्लियर दैट every organization should have. So what is the need of accounting? In early days, business organization and transaction are small or easier manageable owned by the business. Means अगर एक small organization है तो it is easily managed by the manager or maybe owner. जैसे sole proprietor business है, so in case of sole proprietor business, the business is very easy to manage because small organization and the transaction is very less. While in case of big organization just like corporate and company, the transaction are much more higher or bigger. The transaction are more, or the management of the organization is very difficult to manage the organization. For that we need accounting. Accounting help for proper recording of your transaction, for which it helps to know the profit or loss of the organization or particular position of the company in particular date. एक पर्टिकुलर डेट में क्या कंपनी का लॉस हुआ है या प्रॉफिट, पर्टिकुलर डेट में क्या एसेट है या क्या लायबिलिटी है। सॉरी फॉर दैट। बिजनेस जो है कि बैलेंस शीट इन पर्टिकुलर डेट में कितना एसेट है, लायबिलिटी बताता है, एंड पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। मे बी 6 मंथ, मे बी क्वार्टरली, मतलब 3 महीने के लिए हो सकता है, और मे बी एनुअली। ठीक है। देन those transactions which are economy in nature, only those transactions which are economy in nature, that is recorded. Transaction involved that in monetary terms, means any goods or services which is related to the monetary terms, only that are in record in the books of accounting. Then therefore it is necessary to record all the transactions for systematic and timely represent the business organization. Accounting information useful for the management and outside agency. Generally, who are the users of accounting information? So all the stakeholders जिसको बोलते हैं, जैसे हो गया एम्प्लॉयर जो कंपनी का मालिक है, एम्प्लॉई दोज हु आर वर्किंग अंडर एम्प्लॉयर, एंड फॉर द अदर स्टेक होल्डर जैसे हो गया आपका क्रेडिटर्स, डेटर, मीडिया, गवर्नमेंट, देज आर द persons who are need accounting information. For that it is required to maintain the accounting record, and for that decision making.
In fact, accounting is necessary, but not only for the business organization, but also for not profit organization, such as school, college, and hospital. So, only profit motive is not the motive of the organization, but there are some other objectives also. But there are some organizations where their profit is not the motto, just like school, institution, or NGOs, but still they are maintaining the accounting record. So it is mandatory to know how much profit or gain, how much income or expenditure made particular organization or institution by particular period or on particular date, how is the financial position. Then definition of accounting. So what is definition of accounting is recording of transaction, means any business transaction that has to be recorded, that known as accounting of transaction, which are economy in nature. So any transaction which is economy in nature, that has to be recorded. So accounting said early involved of classification of collection, recording, and classification of financial data, means collection that financial data, recording on and classification of the data, such as shareholder, creditor, or investor, shareholder, creditor, investor, or other party. Then as for the CPA, Chartered Public Accountant, American Institute of Public Accountant, AICPA, जिसे बोले accounting is the art of, it is a art of recording, classifying, and summarizing of any significant manner the term of money transaction event of such part of the last financial character, interpretation of result thereof, means it is a recording of classifying of or summarizing of accounting or economy transactions. So it helps for providing the enterprise can conduct the order fashion, establish the basic reporting of financial condition, enterprise result और operations. So next हम लोग देखेंगे accounting. So as for the American Accounting Association AAA, define process of identifying, measuring, and communicating the economy information, permanent information, the judgment for decision making, means accounting transactions are useful for the decision making of the organization, or the owner or the stakeholder are able to take their decision through the help of accounting information. Next, basics involved in definition. So what is the summary of financial accounting? Means identification of financial transaction. So first you have to know what are the transactions which are फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे सामान खरीदने, परचेजिंग ऑफ द गुड्स, सेलिंग, आप सामान बेच रहे हो, सेल्स ऑफ द गुड्स, देन यू आर परचेजिंग द एसेट और यू आर डिस्पोजिंग द एसेट, देन यू आर बुकिंग द एक्सपेंडिचर, आप खर्चा कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो और यू आर रिसीविंग द इंटरेस्ट. सो दीज आर द ट्रांजेक्शन व्हिच आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये सब ट्रांजेक्शन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. देन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, सेकेंड स्टेप इज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट पे आप रिकॉर्ड करोगे. सो दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स यू आर सेग्रीगेटिंग द डिफरेंट ट्रांजेक्शन, मीन्स परचेज को अलग करना है, सेल्स को अलग करना है और एसेट को अलग करना है, लायबिलिटी को अलग करना है. सो सेग्रीगेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन. और पार्टिकुलर कैटेगरी, एक कैटेगरी को एक जगह रखना है, दूसरा कैटेगरी, जैसे एक फल है, फल के एक बकेट में बहुत सारे फल है, जैसे हो गया मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एंड एवरीथिंग. सो यू नीड टू सेग्रीगेट द fruits. So similarly, all the after identification of the transaction and recording of the transaction, it is required to classify the transaction as per the nature. Then summarize the transaction, that is called trial balance. Next हो गया क्या, summarization of transaction. Next क्या step है, summarization, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. आप ट्रायल में हर एक अकाउंट का बैलेंस, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, सेल्स हो गया क्रेडिट बैलेंस और एक्सपेंसेस हो गया डेबिट बैलेंस. तो आप जो है हर एक साल का पूरा या हर एक डे का
पर्टिकुलर मंथ में कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, तो बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दैट इज कॉल्ड summarize transaction. Then interpretation of financial data means you are interpreting the financial data, means within the organization or between the department आप क्या कर रहे हो, इंटरप्रिट कर रहे हो, मीन्स लास्ट ईयर कितना सेल्स था, इस साल कितना हुआ, प्रीवियस ईयर क्या था, अभी क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. देन कम्युनिकेशन ऑफ communicate in the interpret in the financial result. Then function of accounting. अकाउंटिंग फंक्शन क्या होता है, ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं. सो देर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन मेकिंग द डिसीजन, देन कम्युनिकेशन टू द ओनर ऑफ मैनेजमेंट और इंटरेस्टेड पार्टी, दैट इज स्टेक होल्डर जिसको बोलते हैं. देन इंटरप्रिटेशन डाटा, समराइजेशन ऑफ डाटा एंड मेकिंग डिसीजन. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट हो गया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. सो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. तो फर्स्ट क्या है, द टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस. सो फर्स्ट हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस, ऑल द ट्रांजेक्शन व्हिच इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कीपिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. और जैसे हो गया सेल्स और कैश रिसीट और पेमेंट हो गया. देन सेकेंड हो गया एसेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एसेटल द प्रॉफिट लॉस, कितना पीरियड में क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ. तो सेल्स माइनस योर कॉस्ट इज योर प्रॉफिट, मीन्स कितना सेल्स हुआ और कितना आपने एक्सपेंडिचर किया, व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज योर एक्सपेंडिचर, डिफरेंस इज योर प्रॉफिट और लॉस. सो एसेटल द प्रॉफिट और लॉस और प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. देन एसेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, means on particular date how much your asset and how much your liability. What is asset and what is liability. So what is asset? Asset means amount invested by the business for long term benefit for purchasing a particular property. जैसे हो गया प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, गुडविल, ऑल दीज आर एसेट. एंड लायबिलिटी, सो जो पेमेंट करना है बिजनेस को, आउटसाइडर को. तो एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे आपका कंपनी लॉ में पढ़े होंगे, बिजनेस एंड द ओनर आर सेपरेट. सो दैट इज एसेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मींस ऑन पर्टिकुलर डेट आपका एसेट कितना है, लायबिलिटी क्या है, बिजनेस का कितना पैसा देना है और आपका एसेट कितना है, व्हाट इज योर लायबिलिटी एंड व्हाट इज योर एसेट. देन प्रोवाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज, मीन्स ऑल द स्टेक होल्डर, जैसे मैंने बताया था एम्प्लॉई और मे बी अदर डेटर, क्रेडिटर और मैनेजमेंट और ओनर, और दीज आर द स्टेक होल्डर और इंटरेस्टेड पार्टी जिसको बोला जाता है. सो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सो दैट दे आर एबल टू टेक डिसीजन, ताकि वो अपना डिसीजन ले पाए कि वेदर दे विल इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर बिजनेस और नो. इन्वेस्टर क्या करेगा, पैसा लगाएगा बिजनेस में, तो अगर प्रॉफिट हुआ तब लगाएगा, लॉस हुआ तो लगाएगा क्या, जनरली नहीं लगाएगा. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड, दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. पहला होगा कीपिंग द सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, एसेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट, देन एसेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने यहाँ बताया था इंटरेस्टेड पार्टी का डेफिनेशन यहाँ पर बताया है ओनर और स्टेक होल्डर. तो ओनर मतलब क्या होता है, जो पर्सन पैसा लगाता है बिजनेस उसको बोलते हैं ओनर. उसका क्या मोटिव है कि अच्छा रिटर्न पाना. और देन हो गया प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर मतलब हो गया जो बिजनेस पैसा लगाते हैं जो पार्टी, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर. सो इन्वेस्टर व्हाट दे वांट मनी सो दैट दे कैन अर्न प्रॉफिट. Investor means the person who are interested in buying or the shares of the company, want to advance money. Then lender मतलब जो पैसा कंपनी को देते हैं, lender. Record to fund of the business provided the owner or the business going a requirement more fund. The creditor, supply of the goods or services, जो पर्सन सप्लाई करता है, रॉ मेटेरियल जो सप्लाई करता है, क्रेडिटर्स.
managers, दो person who are working in the organization, they are the managers who manage the company. तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए भाई, देखो इसमें सिंपल बात है, हर एक जो इंटरेस्टेड पार्टी या स्टेक होल्डर बोलते हैं, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, कंपनी अच्छा होगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा अच्छा से, सो दे विल गेट प्रॉपर टैक्स। देन एम्प्लॉय कौन है, जो काम करता है कंपनी में, भाई उनको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, अच्छा कंपनी चलेगा तो सैलरी अच्छा मिलेगा, कंपनी नहीं मिलेगा तो सैलरी नहीं मिलेगा। देन रिसर्च एंड सिटीजनशिप, देन रिसर्चर और सिटीजन, सो सोसाइटी और सिटीजन। तो सोसाइटी क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस का खाली प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बट सम अदर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। सो दे आर द सिटीजन्स, मीन्स द पर्सन just like bank or maybe third person. So this is all about the accounting definition and interested party. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। सो देन फंक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, all the detail I am going to cover in the next video. So thank you very much friend, thank you for watching, please like and subscribe और अपने दोस्तों को जो है ज़रूर भेजिए ताकि ये सबको मिल पाए। और जो है कि मैं ये जो वीडियो जो है आपके लिए बनाया हूँ और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए और मैं उसको और बेहतर से आपको समझा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।